So today we are going to discuss the chemistry of aminoglycosides and tetracyclines. Actually, this part is not much important, but at least you should have knowledge regarding this. They may ask most possibly one or two questions. एक या दो क्वेश्चंस या इस पार्ट में से आ सकते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स की केमिस्ट्री में से. So that's why we are trying to cover what are the most. First of all, we'll see amino glycosides. Then we'll see tetracyclines. So what are aminoglycosides? As the name indicate, what are aminoglycosides? As the name indicate, they will have amino sugar and glycosidic linkage. Okay. So aminoglycosides means what? Aminoglycosides, these are the broad spectrum antibiotic. So they will be active against gram positive, gram negative, various kind of fungus, actinomycetes, etc. etc. So that's why they are known as a broad spectrum antibiotics. Aminoglycosides. Amino means there will be some amino portion. Glycosides means there will be some glycosidic bonds. So these aminoglycosides common structural feature, that is nothing but the amino sugar, that is known as a glucosamine, then central lactone ring, and then they are attached together with the glycosidic bond. So aminoglycosides. Amino we'll discuss in again upcoming slides. They are nothing but the broad spectrum antibiotic, and mostly they are active against the gram negative bacteria than gram positive. जो पेनिसिलिन से आपका जो शेफालोस्पोरिन से, they are mostly active against the gram positive, not active against the gram negative. So there is exception, though there are some extended spectrum penicillins, they are also effective against the gram negative microorganism. But particularly these aminoglycosides, they are known as a broad spectrum, and they are mostly active against the gram negative organism like Pseudomonas aeruginosa. They are also active against the gram positive, but they are more active against the gram negative as compared to gram positive. Okay. Now these aminoglycosides, they were isolated from the fungus Streptomyces griseus. Streptomyces griseus. You know that we have seen the mechanism of action of this aminoglycoside when we was discussing about the pharmacology. So they will act by inhibiting the protein synthesis. They will bind to a particularly 30S ribosomes, or few of them bind 50S ribosomal subunit during the protein synthesis. They will directly inhibit the protein synthesis by binding with the 30S and 50S ribosomes, and also they will cause misreading from the RNA strand. जो RNA strand read होता है पर्टिकुलर टाइप का कॉलम कौन सा आने वाला है, RNA strand जो मैसेंजर RNA होता है उसका रीडिंग होता है, और उसके अपोजिट उसका न्यूक्लियोसाइड ऐड किया जाता है. Okay, so they will cause misreading of RNA strand, misreading on codons on RNA strand, and then they will directly emit the protein synthesis. They also disturb the protein formation. Okay, so they will inhibit the protein synthesis by different mechanism, like they will bind to 30S ribosome or 50S ribosome, and they will inhibit the protein synthesis. They can cause misreading of RNA. They have certain adverse effect. Okay, though they are broad spectrum and highly useful antibiotics, they have very common adverse effect, so which are very severe. So they will have a severe adverse effect like nephrotoxicity, then ototoxicity, that is hair loss. Okay, nephrotoxicity means uh, ulceration to kidney, or then kidney failure, etc. etc. Nephrotoxicity, particularly nephron. Then neurotoxicity, most of them are neurotoxic, so they may cause peripheral neuropathy, then anything neurotoxicity. Okay, so we have seen this regarding mechanism action, then adverse effects, specific uses, and all that we have seen in the pharmacology. If you anybody is not remembering, then they can go and watch the previous lectures. Now we'll see the same chapter from medicinal chemistry point of view. So examples of amino glycosides. कितने examples हैं amino glycoside के वो देख लेते हैं एक बार just revise. So here streptomycin. First one is a streptomycin. So it was obtained from microbial. What is the microbial source? The streptomycin was obtained from Streptomyces griseus. Streptomyces griseus. Okay. Now this streptomycin is wide spectrum, broad spectrum antibiotic. It is used in the variety of condition we have seen in the pharmacology. But particularly this is a reserved drug. This is a reserved drug for treatment of tuberculosis. It is a reserved drug for treatment of TB. Reserved drug. Second line drug है TB के लिए. Then neomycin. Next one is a neomycin. Neomycin, it is obtained from Streptomyces pallidi. It was obtained from Streptomyces pallidi. Now this neomycin is a mixture of neomycin B and neomycin C.
So neomycin C will have a neosamine sugar in the structure. So neomycin B will not have neosamine sugar. It will have simple pentose sugar. So then again, this neomycin is topically used. It is not used systemically. It is topically used only for treatment of various kind of skin infection and all that. Okay. So and again, this neomycin is a photosensitive antibiotic. It is a photosensitive antibiotic. Okay, it is used in the treatment of eye, ear, skin infection, burn, treatment of burn wounds, then ulcers on the skin and infected dermatosis. जो भी स्किन का इन्फेक्शन है उसके इसके लिए यूज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज केनामाइसिन. जस्ट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. केना डिफरेंट टाइप ऑफ अमोनिक ग्लाइकोसाइड. केनामाइसिन, it is obtained from Streptomyces canamyceticus. It is obtained from Streptomyces canamyleticus. Canamyleticus. Okay. So now it is a mixture of different antibiotics. ये canamycin जो है ये दो तीन आता है इसको. Canamycin A, canamycin B, canamycin C. So it is a mixture of canamycin A, B, C. Okay, A, B and C. It is only used for certain type of systemic infection and mostly used for treatment of infection related to GIT, gastrointestinal tract. जैसे आपको सीजोलोसिस, डायरिया या फिर अमीबियोसिस वगैरह हो गया तो उसमें यूज करते हैं. पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सिस्टमिक पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर treatment of GIT infections. Now next one is a gentamicin. Okay, next one is gentamicin. Gentamicin is again a broad spectrum antibiotic. It is used systemically as well as topically, both. Now it is obtained from Micromonospora purpurea. माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पुरिया. ये माइक्रोबियल सोर्स इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे. विल यू प्लीज कॉल मी लेटर, आई एम इन अ लेक्चर. विल यू प्लीज कॉल मी लेटर, आई एम इन अ लेक्चर. So this gentamicin is obtained from Micromonospora purpurea. Remember the source. This source is important. Antibiotic and its microbial source. It is very important. They can ask question on this. So either they can ask direct question or simple question, or they can ask question like match the following type question. They will give in one column they will give you the name of antibiotic, another column they will give you microbial source, and they will ask find the correct pair. So gentamicin is obtained from Micromonospora purpurea. Now it is again mixture of gentamicin C1, C2 and C2A. Sorry, C1, C2 and C1A. Again, it is a broad spectrum antibiotic used in the gram-negative bacteria infection, particularly against the Pseudomonas aeruginosa. It is used systemically as well as topically. ये इंजेक्शन भी उसका अवेलेबल है जेंटामाइसिन का, और टॉपिकली वेरियस क्रीम्स में भी अवेलेबल है. सो टॉपिकली इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर्स, eye infection and phytoderma. Phytoderma is fungal infection of skin. Okay, what does mean by bed sore? Suppose that कोई पेशेंट है आपका जो कंटिन्यूस बेड पे है, बेड रिटर्न है, और आईसीयू में अगर 1.5 मंथ से ज्यादा अगर हो गया उसको, सो ही डेवलप सम अल्सर्स डेवलप होता है उसका. ग्लूटस मैक्सिमस जो आपका बटक मसल है उसके ऊपर अल्सर डेवलप होता है. दैट इज नोन एज अ बेड सोर एंड दे आर वेरी बैड फॉर ट्रीटमेंट. It is not easy to treat the bed sores. Okay, so that's why this gentamicin, being a broad spectrum antibiotic, it is used in the treatment of bed sores. Okay, then again next one is a netilmicin. Netilmicin, netilmicin, sorry, netilmicin. Okay, so it is obtained from Micromonospora species again. So Micromonospora species, netilmicin. Now it is a much resistant to bacterial inactivating enzyme than other aminoglycosides. So इसमें क्या होता है कि aminoglycosides जो है, they bacteria will develop some enzymes in themselves to inactivate this antibacterial drugs. ठीक है, जैसे पेनिसिलिन होता है. पेनिसिलिन is producing bacteria, gram negative bacteria. They will produce penicillinase enzyme. So that will break down the penicillin beta lactam ring. Likewise, so in some bacteria they will develop some kind of enzymes. Okay, we will see it again, don't worry. They will develop some kind of enzymes that will metabolize or that will inactivate the aminoglycosides. So amongst all aminoglycosides, this netilmicin is a highly resistant to the bacterial inactivating enzyme. Okay, मतलब बैक्टीरिया इनएक्टिवेटिंग एंजाइम भी प्रोड्यूस भी करेगा, फिर भी ये नेटिलमिसिन एक्टिव रहेगा उसमें, बिकॉज they will not produce enzyme that will metabolize the netilmicin. They can produce
enzyme against neomycin, against the gentamicin, kanamycin, streptomycin, etc. But nitramycin is a much resistant to bacterial inactivating enzyme. Okay. Now it is again used in the treatment of enteric bacteria. Treatment of enteric bacteria means why again GIT infection. Enteric bacteria and other aerobic gram-negative bacilli. Okay. Now next one is tobramycin. Next one is the tobramycin. Next one is the tobramycin. Tobramycin is also known as nebramycin. Remember, tobramycin is also known as nebramycin, and it is obtained from Streptomyces tenebraris. Streptomyces tenebrarius. Okay, tobramycin is obtained from Streptomyces tenebrarius. It is again similar to gentamicin, but activity is again little bit superior than your gentamicin against the Pseudomonas aeruginosa. ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की जैसा है, सॉरी जेंटामाइसिन की जैसा है, लेकिन उसके उससे ज्यादा एक्टिव है थोड़ा. सो जेंटामाइसिन से ज्यादा मोर एक्टिविटी है इसको अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया Pseudomonas aeruginosa. Then again this is used in the certain kind of certain treatment of certain kind of pneumonia. Pneumonia जो है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. और osteomyelitis, then osteomyelitis caused by Pseudomonas aeruginosa. Pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa and osteomyelitis caused by Pseudomonas aeruginosa. Tobramycin. Then next one is a Pramycetine. Next one is a Pramycetine. Now this Pramycetine is also known as Sopramycin. ये बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा इसका स्किन के ऊपर. Sopramycin जब भी आपको कोई वुंड होता है या जख्म होता है तो मोस्टली ये क्रीम डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं. Sopramycin. So it has an antibiotic named Pramycetine. Okay, so Pramycetine is named the Sopramycin. Okay, so it is obtained from Streptomyces dicaris. Now it is only used topically for various skin infections. Okay, next one is a Paromomycin. It is obtained from Streptomyces remoros. Paromomycin is obtained from Streptomyces remoros or Streptomyces paromomycinus. Streptomyces paromomycinus और Streptomyces ramosus. Paromomycin इसके ऊपर ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिला नहीं है. सो नेक्स्ट वन इज योर next one is amikacin. This is nowadays used. It is nowadays used. Amikacin is synthetic derivative of kanamycin. Remember, amikacin is a synthetic derivative of kanamycin. Kanamycin जो है उसका ही synthetic derivative है. कौन है? Amikacin. Now what is it? It is nothing but the 4-amino 2-hydroxyl butyryl kanamycin. तो आपको ये पूछ सकते कहोगे 4-amino 2-hydroxyl butyryl kanamycin is nothing but the amikacin. Remember, amikacin is nothing but the semi-synthetic derivative. It is a derivative of kanamycin. Okay, so it is 4-amino 2-hydroxyl butyryl kanamycin. Now, in this case, L isomer of this amikacin is more active than D isomer. ये याद रखो थोड़ा सा. L isomer is more active than D isomer, and it is less ototoxic than other aminoglycosides. जैसे आपका gentamicin is a more ototoxic, streptomycin is a highly ototoxic. Okay, then kanamycin is also having toxicity but lesser extent. So this amikacin is also having ototoxicity, but it is again it is having toxicity lesser extent as compared to other aminoglycosides. जो बाकी के ड्रग्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, उसमें जितना टॉक्सिटी करेगा ओटोटॉक्सिटी मतलब क्या? दैट विल डैमेज योर एट्थ cranial nerve. These aminoglycosides, and that will leads to deafness. आप बहरे हो जाओगे. ठीक है, so deafness or ringing in the ears and all that. Okay, so amikacin will have less ototoxicity as compared to other aminoglycosides. Remember, and it is a synthetic derivative of kanamycin. Structural activity of aminoglycosides. So before that, you should know the chemistry of these aminoglycosides. Okay, so aminoglycosides consist of 2 or more amino sugar. ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 या ज्यादा अमीनो शुगर्स होंगे. दे आर जॉइंड इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो अमीनो शुगर जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जॉइन होते हैं. बीच में आपका एक रिंग भी रहेगा. तो अमीनो ग्लाइकोसाइड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर अमीनो शुगर जॉइंड इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू ए हाईली सब्स्टिट्यूटेड 1,3 डायअमीनो साइक्लोहेक्सेन, और इट इज नोन एज अ माइनोसाइक्लिटोल. सो एक लैक्टोन रिंग होगा, दैट इज नोन एज अ माइनोसाइक्लिटोल. ओके, माइनोसाइक्लिटोल, sorry, lactone नहीं, cyclitol hexane, diamine cyclohexane, minocyclitol. That is a minocyclitol will be the central ring
two amino sugars will be joined to this ring both side by a glycosidic bond. That is the chemical structure. Chemically it is nothing but the it will have two or more amino sugar joined in the glycosidic linkage to a highly substituted 1,3 diaminocyclohexane ring, that is a minocyclidol. Okay, the ring is nothing but the this ring, now central ring, the ring is 2-deoxy streptamine. This ring is known as 2-deoxy streptamine. Okay, so that's why this is known as a streptomycin. For example, streptomycin, in case of streptomycin it is a, or in case of streptomycin and dihydrostreptomycin, दो ड्रग जो है streptomycin और dihydrostreptomycin. So this ring is 2-deoxystreptamine in case of streptomycin and 2-deoxystreptomycin. This 2-deoxystreptamine is the ring in case of all aminoglycosides except streptomycin and dihydrostreptomycin. So streptomycin में dihydrostreptomycin में ये स्ट्रेप्टिडीन होगा, स्ट्रेप्टिडीन रिंग होगा, स्ट्रेप्टिडीन, ठीक है, स्ट्रेप्टिडीन, और बाकी इसमें स्ट्रेप्टामाइन होगा. ठीक है, सो बाकी जो aminoglycoside है उसमें स्ट्रेप्टामाइन नाम का रिंग होगा ये, और स्ट्रेप्टोमाइसिन और डायड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन में स्ट्रेप्टिडीन होगा, स्ट्रेप्टिडीन. ठीक है, नाउ कैनामाइसिन एंड जेंटामाइसिन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो शुगर अटैच्ड टू 2-deoxy स्ट्रेप्टामाइन. जैसे कैनामाइसिन में, जेंटामाइसिन में कौन सा रिंग होगा, 2-deoxy स्ट्रेप्टामाइन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन में कौन सा होगा, स्ट्रेप्टिडीन. ठीक है, स्ट्रेप्टिडीन रिंग होगा इसमें, और 2-deoxy स्ट्रेप्टामाइन होगा आपका कैनामाइसिन जेंटामाइसिन में. ठीक है, इन केस ऑफ streptomycin 2 amino sugars are attached to streptidine. Streptidine ring है streptomycin. In case of neomycin there are amino sugars. Neomycin में neomycin A, B, C तीन है. So in case of neomycin amino sugars are attached to 2-deoxy streptamine. ठीक है, मतलब आपका सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन और डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन उसमें स्ट्रेप्टिडीन रिंग रहेगा, और बाकी इसमें 2-deoxy स्ट्रेप्टामाइन रिंग रहेगा. अमाइन एंड डीन याद रखो. 2-deoxystreptamine will be the ring, central ring for all aminoglycosides except streptomycin and dihydrostreptomycin. तो उसमें streptidine रहेगा. Okay, the main structural feature of aminoglycosides, जितने भी aminoglycosides है उसके structural feature क्या है? So main structural feature of aminoglycosides are nothing but the amino sugar portion, then centrally placed hexose ring, that is streptidine or 2-deoxystreptamine. Streptidine in case of your streptomycin, dihydrostreptomycin, and deoxystreptamine in case of other kanamycin, neomycin, then gentamicin, etc. Okay, now structural activity relationship of your aminoglycosides. तो इसमें क्या पार्ट है आपके, अमाइनो शुगर पार्ट है एक, और दूसरा कौन सा पार्ट है आपका, सेंट्रली, देखो सेंट्रली प्लेस्ड हेक्सोस रिंग. देयर आर टू main structural feature of your aminoglycoside, that is a amino sugar part and centrally placed hexose ring, that is known as aminocyclitol ring. amino sugar पे आप क्या क्या placement कर सकते हो, you can modify amino sugar as well as centrally placed hexose ring. Now amino sugars, so bacteria will produce inactivating enzyme against these aminoglycosides. मैंने पहले ही बोला कि bacteria can produce, or bacteria will develop resistance against these aminoglycosides by producing the various inactivating enzymes, okay, which will target the structure known as a carbon number 6 and carbon number 2 position, which will target carbon number 6 to carbon number 2, carbon number 6 and 2. okay, ये दो पोजिशन को टारगेट करेंगे. कहाँ पे, देखो दिस इज नोन एज अमाइनो शुगर. ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ये ऑक्सीजन अल्डिहाइड का, ये इट इज अ 6 हेक्सो शुगर, नहीं इसे हेक्सो से अमाइनो शुगर. ठीक है, सो CH2 या NH2 अमाइन है ना, अमाइनो शुगर. तो उसमें क्या होगा, 2 पोजीशन पे जो अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर एक टारगेट करेंगे, और 6 पोजीशन पे जो 6 पोजीशन जो है उसके ऊपर भी टारगेट करेंगे. सो दैट्स व्हाई दे कैन डेवलप रेजिस्टेंस, दे विल ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड्स. NH2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे या फिर ये रिंग ओपन करेंगे. सो जो साइक्लिक रिंग है आपका ये ओपन कर देंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई दे कैन डेवलप resistance against this antibiotic. So that's why this streptomycin is a second line drug, because once a tubercular bacteria will develop a resistance against streptomycin, then there is no drug that can treat the tuberculosis. That's why. So that's why streptomycin is a second line drug. Now methyl substitution at C3, methyl substitution at C6. मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन किया मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप या फिर दूसरा OCH3 वगैरह किया,
so that compound will become resistant to bacterial enzymes. उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे. Then removal of hydroxyl group at C3 and C4 both groups are does not affect the activity. So ये जो hydroxyl group है C3 and C4 from the amino sugar. So if you try to remove this hydroxyl group and that will not affect the activity. That is a there are only few points in the SAR. Okay. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नेक्स्ट वन इज सेंट्रली प्लेस्ड एक्सोजोम. इसमें दो ही है आपका कि जो बैक्टीरिया होता है वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम बनाता है अगेंस्ट द अमाइनो ग्लाइकोसाइड. वो कहाँ पे टारगेट करेंगे आपका कार्बन नंबर 6 कार्बन नंबर 2. ये जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव कर देंगे वो. और एक कार्बन नंबर 6 जो ये जो है आपका तो इसके ऊपर भी टारगेट रिंग ब्रेक कर देंगे. So if you place a methyl group or any bulky substitution over here, so the bacteria, the molecule become resistant to the inactivation. Removal of these two hydroxy so will not affect the activity. अगर आपने ये remove भी किया और रखा भी तो कोई दिक्कत नहीं. Next one is centrally placed exos ring, aminocyclitol ring. This is known as aminocyclitol ring. Aminocyclitol ring. At C1, at carbon number 1, acylation. At C1, acylation. It is present in case of amikacin. Acylation कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, अमीकासिन में. इथाइलेशन इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इथाइल सिसोमाइसिन में. doesn't affect the activity but retain the antimicrobial potency. Doesn't increase the activity but मतलब ये एसाइलेशन किया आपने, इथाइलेशन किया कार्बन नंबर 1 पे तो आपका एक्टिविटी वगैरह कुछ इंक्रीज वगैरह नहीं होगा बट स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा. Then in case of Sisomycin series, 2 hydroxylation and 5 deoxygenation increases the strength, that is inhibition against the bacterial inactivating enzyme. तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते, सेंट्रली प्लेस्ड एक्सोजरिंग जो है उसमें भी आप ये कर सकते हो, 2 hydroxylation और 5 deoxygenation. Very few alteration can be done on the central link without affecting the spectrum of activity. मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते आप. So very few alteration that can be done without affecting the activity. Now we'll see the next. Now it is a structure of your kanamycin. ये स्ट्रक्चर है आपका kanamycin का, ठीक है. kanamycin का स्ट्रक्चर है ये. It is amino sugar, again it is amino sugar attached with the central exos. Now inactivation of kanamycin by different kind of enzymes, bacterial inactivating enzyme. बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स तैयार करते हैं उनका उसमें म्यूटेशन करके इनएक्टिवेटिंग एंजाइम तैयार करते हैं. सो दैट विल एक्ट ऑन अ डिफरेंट साइट्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कैनामाइसिन तो बैक्टीरियल एंजाइम्स. तो पहले अपन टर्म्स कौन से ये देख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखो ACC लिखा है. ACC मीन्स अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज. सो अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज, ACC मीन्स अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज. यहाँ पे देखो अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज. फिर ANT जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है ANT. तो ANT मीन्स न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज, एंड AHP एक है. AHP मीन्स फॉस्फोट्रांसफरेज, एडेनिन फॉस्फोट्रांसफरेज. सो दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. ओके. सो बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया भी ना अपन जो ह्यूमंस है अपन भी सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेते हैं अपना कि नहीं यार यहाँ पे ठंड बहुत है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे. सो दैट्स वाई बैक्टीरिया भी जुगाड़ करने में माहिर होता है. तो वो भी जुगाड़ कर देता है. ठीक है, आप मेरे से शाने हो क्या, आप एंटीबायोटिक लॉन्च कर रहे हैं तो मैं नया एंजाइम लॉन्च करूंगा जो आपके एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है. सो अमीनो एसिटिल ट्रांसफरेज, देन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंड phosphotransferase. These are the enzymes produced by bacteria to inactivate the amino glycosides. Now these enzymes अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज कहाँ पे एक्ट होगा, ये यहाँ पे एक्ट होगा जो अमाइनो ग्रुप है. ठीक है, जो अमाइनो ग्रुप है रिंग का, आपके पहले रिंग का, उसके ऊपर यहाँ पे ये अमाइनो एसिटिल ट्रांसफरेज ये इसके ऊपर एक्ट होगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ये अमाइनो को रिमूव कर देगा. देन न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज कहाँ पे एक्ट होगा, दैट इज ANT. देखो ANT जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको रिमूव कर देगा. न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज will break down the hydroxyl bond. Then your amino acetyl transferase will break down the amine group जो है. Then again phosphotransferase ये कहाँ पे एक्ट होगा, जो phosphotransferase है वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर एक्ट होगा और वो भी उसको
ब्रेक डाउन करेगा. सो दैट्स व्हाई these are the bacterial enzymes that can inactivate your aminoglycosides. That's all. बाकी इसमें कुछ important नहीं है, आपका सिर्फ मालूम होना चाहिए कि ये enzymes वगैरह होता है inactivate के लिए. Now we'll see the structure of streptomycin next. Now it is a structure of streptomycin. यहाँ पे जो structure है streptomycin का. Okay. So first ring amino sugar is nothing but the here in case of streptomycin amino sugar is nothing but the streptidine. यहाँ पे देखो streptidine लिखा है ना मैंने. तो स्टेप्टिडीन ये अमाइनो शुगर है, जो पहला ब्रैकेट है उसमें ये जो शुगर है अमाइनो शुगर दैट इज नोन एज स्टेप्टिडीन. देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर्ड चेयर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड और उसको हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. यहाँ पे हाइड्रोक्सिल होना चाहिए तो अमाइनो है यहाँ पे क्वांटिटी. सो अमाइनो शुगर इन केस ऑफ अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज नथिंग बट द 2 डीऑक्सी स्टेप्टामाइन एंड इन केस ऑफ your streptomycin is the streptidine and hydroxystreptomycin also streptidine. So structural feature of streptomycin three parts. Okay, so three parts will be there in the structure of streptomycin. First will be the streptidine ring. ठीक है, जो ये रिंग है उसको streptidine ring बोलेंगे. Then L streptose, इसमें जो शुगर होगा, शुगर जो सेंट्रली प्लेस्ड शुगर है उसको बोलेंगे L streptose. ठीक है, ये जो है शुगर L streptose 5 मेंबर्ड शुगर है स्टेप्टोज. देन जो नीचे वाला अमाइनो शुगर होगा उसको बोलेंगे एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन. एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन विल हैव थ्री पार्ट्स. दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस. स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या क्या होता है? स्टेप्टिडीन शुगर, स्टेप्टिडीन बेसिक रिंग होता है आपका. सो मेन रिंग इज द स्टेप्टिडीन. उसके बाद जो आपका सेंट्रली प्लेस शुगर है उसको बोलते हैं एल स्टेप्टोज एंड टर्मिनल ग्लूकोसामाइन दैट इज नथिंग बट द एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन. ठीक है, याद रखो थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ नियोमाइसिन. ये नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर है आपका. इसमें भी वैसे ही देखो अमाइनो शुगर्स दे आर लिंक्ड विद द सेंट्रल पेंटोज शुगर. देखो यहाँ पे भी पेंटोज शुगर है और अमाइनो शुगर्स लिंक और स्टेप्टिड रिंग भी है उसमें. तो देखो नियोमाइसिन इज अ फैमिली ऑफ टू थ्री एंटीबायोटिक्स. नियोमाइसिन बी, नियोमाइसिन सी. ओके, नियोमाइसिन बी, नियोमाइसिन सी. तो डिफरेंस क्या है उसमें? लिटिल बिट डिफरेंस है, बस एग्जैक्टली अपोजिट है. तो यहाँ पे देखो R1 लिखा है, यहाँ पे मैंने R2 लिखा है. सो नियोमाइसिन बी में सिर्फ R1 में क्या है? इथाइल अमाइन रहता है, इथाइल अमाइन CH2NH2 यहाँ पे R1 में नियोमाइसिन बी में. ठीक है, और नियोमाइसिन सी में यहाँ पे इथाइल अमाइन नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहता है और यहाँ पे R2 पे इथाइल अमाइन होता है. मतलब नियोमाइसिन बी में R1 में क्या रहेगा? इथाइल अमाइन. नियोमाइसिन बी में R1 में इथाइल अमाइन रहेगा, R2 में हाइड्रोजन रहेगा. और एग्जैक्टली नियोमाइसिन सी में अपोजिट है उसका कि R1 में हाइड्रोजन, R2 में अमाइन, इथाइल अमाइन. ठीक है, so that is the difference. That's it. Now we'll see the tetracyclines. Now this is important, and they can ask question on this. This is much important than amino glycosides. Tetracyclines. ठीक है, tetracyclines as the name indicate. Tetra means क्या? Tetra means four. Cycline means clean means there are four cyclic ring. So tetracyclines are the ring, but the four ring they will have four rings fused structure. Okay, so tetracyclines they are known as again broad spectrum antibiotic. Okay, they are again known as a broad spectrum antibiotic. Now tetracyclines will have four ring fused together by a common octahydronaphthacin. कॉमन octahydronaphthacin. ठीक है, ये देखो नेप्थालीन रिंग जो होता है, जो अगर दो बेंजीन का अटैचमेंट है एक में के साथ उसको बोलेंगे नेप्थालीन. अगर तीन है तो उसको बोलेंगे एंथ्रासिन. ओके, है ना. तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में क्या होगा? तीन बेंजीन एक में के साथ अटैच होंगे. ठीक है, सो एंथ्रासिन मींस तीन बेंजीन, नेप्थालीन मींस टू. ओके, सो they will have four rings fused together by a common octahydronaphthacin. ये है octahydronaphthacin, ये ring B and C. Okay, then उसको अटैचमेंट है ring. Okay, so it is just a common structure for tetracycline. Ring A, ring B, ring C and ring D. Numbering will start from here. This ketone in ring number A is known as a 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मतलब यहाँ से जाके ऐसा घूमना है आपको. ठीक है, तो वो नंबरिंग आता है उसका. सो दैट इज नंबरिंग. अगेन दिस tetracyclines they are nothing but the broad spectrum antibiotic. They are effective against the, they are very potent antibiotic, effective against the various gram positive gram negative bacteria. Okay, aerobic bacteria. And majority of tetracyclines are nothing but they are obtained from fermentation of
स्पेसीज। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीज रहेगा, उसमें से ही टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, आपको याद होना चाहिए कि कॉमन स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कार्बन नंबर 11, कार्बन नंबर 12, दिस इज मच इंपॉर्टेंट। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके, ये जो कार्बन नंबर 11 का कीटोन ग्रुप है, कार्बन नंबर 12 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ही ऊपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आपका। These two carbons are involved in the formation of complex with the metals. Metals और जो भी आपका कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जो होता है उसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स जो है वो सोल्यूबल नहीं होता, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। सो कॉम्प्लेक्स इज नॉट वाटर सोल्यूबल एंड दैट विल नॉट बी absorbed. So that's why there is a decreased bioavailability. If you take antacid tablet and tetracycline tablet together, if you take tetracycline and iron tablet, if you take tetracycline along with milk, okay, and then again these tetracyclines are contraindicated in case of children and lactating mothers because they will have teratogenic effect. बाद में देख लेंगे इसको, already we have seen it in a pharmacology. Now mechanism of action of tetracyclines, what is, so they will again inhibit the protein synthesis. Mechanism is nothing but they will also inhibit the protein synthesis by binding with the 30th ribosomal subunit. इसके बारे में भी अपने डिटेल में अपन ने देखा है फार्माकोलॉजी। इसमें जस्ट आपको एक रिवाइज करने के लिए मैकेनिज्म बोल रहा हूँ। तो दिस विल बी द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पे देखो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पिक्चर है इसका। ये जो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप है, अगर इसके बाद में ये भी ऑक्साइन ग्रुप है, सी डबल ग्रुप NH2 ऑक्साइन। ठीक है, ये ऑक्साइन ग्रुप भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पिक्चर है। ठीक है, ये देखते हैं बाद में। नाउ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेट्रासाइक्लिन, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रासाइक्लिन। Tetracyclines are amphoteric in nature. Amphoteric means they will have both negative as well as positive charge. That's why they are known as amphoteric. So they are amphoteric in nature due to both acidic as well as basic substituents. उनमें दोनों भी होंगे, एसिडिक भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे और बेसिक भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे। That's why they are known as a amphoteric in nature. Okay, amphoteric in nature, they will have low water solubility with strong acid and base. Tetracyclines will form water soluble salt and they have 3 ionizable groups in the structure. इसमें 3 ionizable groups होंगे, कौन से? First one is a tricarbonyl methane moiety, tricarbonyl methane moiety. Second one is a phenol diketone moiety and third one is a ammonium cation moiety. तो देखो ट्राइकार्बोनिल मीथेन मोइटी, ट्राइकार्बोनिल मीथेन रेसिड्यू, ये क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द pKa1। जो pKa होता है, एक pKa के रिस्पॉन्सिबल है, pKa1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ट्राइकार्बोनिल मिथाइल। ठीक है, सो यू कैन सी pKa1, यहाँ पे देखो ट्राइकार्बोनिल मिथाइल, ये एक कार्बोनिल है ना, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो NH, तो एक कार्बोनिल, ये अभी यहाँ पे भी एक कार्बोनिल, और ये जो यहाँ पे भी कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल हो सकता है, हाइड्रोजन लॉस होगा तो that is responsible for pKa1. Okay, now second ionizable group in this tetracycline is phenol diketone moiety, phenol diketone moiety। तो डाइकेटोन मोइटी कौन सा है? ये देखो, ये फिनाइल डाइकेटोन मोइटी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कीटोन होगा। ठीक है, सो ये डाइकेटोन, सो carbon number 10 11, it is known as a phenyl diketone moiety and this is responsible for the pKa2, and this third one is nothing but the that is known as ammonium cation moiety. Okay, ammonium cation moiety, so this is responsible for the pKa3. so accordingly इसके ऊपर एक accordingly ये दिया है मैंने कि किसका pKa का। so here tetracyclines, normal tetracyclines जो है वो that will have pKa1 3.3, pKa2 7.7, pKa3 that is nothing but the 9.5, इसके 9.5 होगा इसका। ठीक है, pKa2 कितना होगा? pKa2 होगा 7.7, pKa1 डिसोसिएशन कांस्टेंट 3.3, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में 3.3, 7.4, 9.3, डेमोसाइक्लिन में अगेन 3.3, 7.2, 9.3, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में क्या है कि 3.3, 7.3, 9.1, सेम डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। तो इसका एक है उसका, सिर्फ इसमें कौन से आयोनॉजिकल ग्रुप्स होते हैं वो याद रखो। सो ट्राइकार्बोनिल मीथेन मोइटी, ट्राइकार्बोनिल मीथेन मोइटी कौन सा है? ये वाला पोर्शन। देन नेक्स्ट वन इज अ फिनॉल कीटोन मोइटी, ये जो पोर्शन है दैट इज अ फिनॉल कीटोन मोइटी। देन नेक्स्ट वन इज अ, this is known as ammonium cation moiety. Now next we'll see effect of pH on tetracyclines.
इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टेट्रासाइक्लिन, पीएच का इफेक्ट क्या होगा टेट्रासाइक्लिन की। सो टेट्रासाइक्लिन विल अंडरगो इपिमराइजेशन एट कार्बन नंबर 4, tetracycline will undergo epimerization at carbon number 4 in the solution of intermediate pH। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन का इंटरमीडिएट पीएच मतलब ज्यादा एसिडिक भी नहीं ज्यादा बेसिक भी नहीं, इंटरमीडिएट पीएच, ओके, फॉर एग्जांपल 5 to 8, सो 5 to 8 पीएच के दरमियान क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन जो है उसका सॉल्यूशन, सो टेट्रासाइक्लिन विल गो epimerization, वो tetracycline will go undergo epimerization reaction and they will form epimers. Okay, now tetracycline will undergo epimerization at carbon number 4 in a solution of intermediate pH range, and the isomer after epimerization is known as the epitetracyclines। epimerization के बाद में जो बनता है उसको बोलेंगे epitetracyclines, and they will have less antimicrobial activity as compared to original or natural penicillins, सॉरी नेचुरल टेट्रासाइक्लिन। जो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन है उसके कंपैरिजन में ईपी टेट्रासाइक्लिन का एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ही कम होता है, मैं दिखा था आपको। अभी कार्बन नंबर 4 कौन सा है, देखो ये है ना कार्बन नंबर 4, ये अमोनियम कैटाइन जो है वो यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है सी एन और सी एन, सी एन एन एच थ्री, सी एन सी एच थ्री टू ट्वाइस, लेकिन यही कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये सी एच है, सी एच यहाँ पे 4 नंबर कार्बन है जो सी एच है, तो सी जो हाइड्रोजन है उसका और ये नाइट्रोजन का अरेंजमेंट है ना, नाइट्रोजन का अरेंजमेंट और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अगर अलग हो गया तो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नाइट्रोजन बॉन्ड ओवर कार्बन नंबर 4, दैट इज नथिंग बट द इपीमराइजेशन। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे है ना आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन विद 2 मिथाइल ग्रुप, ये हो गया नॉर्मल नेचुरल टेट्रासाइक्लिन। अगर ये नाइट्रोजन इधर से आया और ये हाइड्रोजन इधर गया, दैट इज नोन एज इपीमराइजेशन और इपी टेट्रासाइक्लिन। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मेंशन करना चाहिए। सो दे विल हैव लेस एक्टिविटी। अगेन अगर आपने टेट्रासाइक्लिन्स को एसिड और बेस में डाल दिया, so strong acid or strong base, so what will happen with the tetracyclines, that is also important। Okay, so tetracyclines having hydroxyl group on carbon number 6 which leads to loss of activity through the modification of C ring। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में अगर सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अगर टेट्रासाइक्लिन आप डालेंगे तो क्या होगा, तो जो कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट होगा और वो बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरा है, ठीक है। सो मैं ये पढ़ता हूँ आपको, बाद में करूँगा। Tetracyclines having hydroxyl group on carbon number 6 lead to loss of activity, through modification of C ring। Strong acid, ठीक है, strong acid will produce dehydration through reaction involving the C6 hydroxyl group and C5 हाइड्रोजन। तो C ये जो यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे 1 नंबर आएगा इंटू 5 6। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोक्सिल है उसके बीच में इंटरेक्शन होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, पहले पढ़ लेंगे इसको। एट C5 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, tetracycline having hydroxyl group on C6 leads to loss of activity through the modification of C ring। Strong acid will produce dehydration through reaction involving C6 hydroxyl group and C5A hydrogen। Double bond is formed as a result of between C5A and C6। A shift of position of double bond in C11A and C12A to produce to the position C11 forming। ठीक है, आप इतना याद रखो कि एसिड एनवायरनमेंट में अगर आप टेट्रासाइक्लिन को डालेंगे ना, सो एसिड विल कन्वर्ट टेट्रासाइक्लिन इनटू अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। सो एसिडिक सॉल्यूशन अगर टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसको टेट्रासाइक्लिन का कन्वर्जन होगा अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल क्रिएट एसिड विल फॉर्म टेट्रासाइक्लिन टू अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। इतना याद रखो। उसका बॉन्डिंग कौन सा इन्वॉल्व है वो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा आपको फिर से। सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल कन्वर्ट टेट्रासाइक्लिन इनटू अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, इतना याद रखो ये लाइन। सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल कन्वर्ट टेट्रासाइक्लिन्स इनटू अनहाइड्रो tetracyclines। Then again strong base will also convert tetracycline into isotetracycline, ये याद रखो। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसको बनेगा अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन को स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसको बनेगा
आइसो टेट्रासाइक्लिन, अनहाइड्रो एंड आइसो। एसिडिक में ए अनहाइड्रो फॉर एसिडिक, एसिडिक पीएच में अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनेगा और बेसिक पीएच में बनेगा आइसो टेट्रासाइक्लिन। नाउ बोथ दिस अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन एंड आइसो टेट्रासाइक्लिन they will not have activity, they will not have एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। ये दोनों भी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी उसका नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ चिलेशन और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ मेटल्स। जो टेट्रासाइक्लिन्स होता है वो मेटल के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सो चिलेशन ऑफ मेटल्स with tetracyclines. So tetracyclines they will form insoluble stable complexes with the metals like calcium, magnesium, ferrous. Okay, जो कैटाइंस होते हैं, जो मेटल आयन होते हैं उसके साथ में क्या करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स, बिकॉज द टेट्रासाइक्लिन्स विल बी एज अ वीक एसिड। ओके, तो उसके साथ में सॉल्ट फॉर्म करेंगे एंड दैट कॉम्प्लेक्स और दैट सॉल्ट इज वेरी स्टेबल एंड दैट हैज अ लेस वाटर सॉल्युबिलिटी। अगर मान लीजिए कि आपने साथ में कैल्शियम का टैबलेट लिया और टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट लिया, या फिर आयरन का टैबलेट लिया टेट्रासाइक्लिन टैबलेट लिया, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स है वो जो कॉम्प्लेक्स है सॉल्ट है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो क्या होगा उसका एब्सॉर्प्शन जो है बॉडी में वो कम होगा। सो दैट्स व्हाई टेट्रासाइक्लिन विल फॉर्म ए स्टेबल complex with metal ions like calcium, magnesium, ferrous, and this complex formed with metals, then milk, then antacid preparation, iron salt. They are literally less soluble and they will affect the bioavailability of tetracyclines. Mostly they will decrease the bioavailability with the concurrent. Okay, अगर आपने साथ में लिया ये सब, ठीक है, मान लीजिए कि आपको टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट दिया है, कैप्सूल दिया है, टैबलेट तो नहीं आता, कैप्सूल आता है उसका, एक ऑस्टासाइक्लिन नाम का कैप्सूल आता है उसका। तो अगर और उसका डॉक्सी डॉक्सी बोल के भी आता है डॉक्सीसाइक्लिन का। तो इफ यू टेक दिस टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क और आयरन प्रिपरेशन और your antacids, they will form a complex that is not soluble in water, so you will have less bioavailability of your tetracycline. Okay, याद रखो। Now again this tetracycline they was affinity towards the metal calcium, particularly calcium के अगेंस्ट में उसका affinity है। सो अगेन ये बाहर के कैल्शियम के साथ में पंगा लेता है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर के साथ जो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ भी पंगा लेता है, ठीक है, उसको भी मेटल उसको भी कॉम्प्लेक्स बनता है। सो टेट्रासाइक्लिन विल हैव affinity because of their affinity towards the calcium ion of, and you know that calcium is present in the teeth and bones में कैल्शियम है, टीथ में भी कैल्शियम है, फास्फोरस भी है, ठीक है ना। सो दे हैव affinity towards these calcium and phosphorus in the teeth and bones, so they will form a complex with that calcium and phosphorus, and that complex is deposited in the bones or teeth, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है कहाँ पे, बोन्स में और टीथ में। दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अ टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, tetracycline orthophosphate complex. So tetracyclines, as they have affinity towards the calcium phosphorus, so they will bind your calcium present in the bone and teeth, and they will form a tetracycline orthophosphate complex. Now this which causes the yellow discoloration of teeth, yellow discoloration of teeth, ये बच्चों में मैक्सिमम होता है। इफ यू यूज दिस टेट्रासाइक्लिन अंडर 12 years, then you may get discoloration of teeth because of this deposition of tetracycline orthophosphate complex on the teeth and bones। उसमें क्या होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स भी कम हो जाता है और आपका टीथ का कैल्सिफिकेशन भी कम हो जाता है, सो योर टीथ विल लूज। Okay, so again this tetracycline can cross placental barrier. If you use this tetracycline in pregnant woman, it can cross placental barrier and affect adversely to the fetus, and that's why this tetracycline is not, this is contraindicated in case of children's below 12 years and pregnant mothers. Okay, so it will cause teratogenicity. Now next यहाँ पे देखो एसिडिक कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन का क्या होगा और बेसिक कंडीशन में क्या होगा। ओके, सो टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में एक जब टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, अगर टेट्रासाइक्लिन का एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ये H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, टेट्रासाइक्लिन in presence of strong acid they will be converted into 5,6 anhydro tetracyclines. Tetracyclines in case of acidic condition they will convert into 5,6 anhydro tetracyclines, and tetracyclines in under basic condition they will convert into आइसो टेट्रासाइक्लिन। इतना याद रखो, ठीक है। तो होता क्या है एग्जैक्टली एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि एसिडिक कंडीशन में देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन नंबर कितना है, ये
1 2 3 4 5 6 7, ये जो कार्बन नंबर है ये 6 नंबर का कार्बन जो है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप वो, और ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर ये बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कीटोन है, कीटोन फंक्शन और ये हाइड्रोक्सिल फंक्शन, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो ये सब बॉन्ड फॉर्म दैट विल कन्वर्ट एसिडिक कंडीशन tetracycline will be converted into 5 6 anhydro tetracyclines. Okay, under basic condition they will be converted into isotetracycline. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे सेम चीज होगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है बीच में का, ठीक है, कार्बन नंबर 11, कार्बन नंबर 11 और ये जो कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड है 11A, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज नोन एज आइसोटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, दैट इज आइसोटेट्रासाइक्लिन। तो आप इतना याद रखो कि एसिडिक कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन का क्या होगा, अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, और बेसिक कंडीशन पे क्या होगा, आइसोटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एंड बोथ दिस अनहाइड्रो एंड आइसोटेट्रासाइक्लिन दे आर इनएक्टिव, इसका एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, now we'll see the structural activity relationship of tetracyclines. So SAR of tetracyclines for linear okay, so four linearly fused tetracyclic nucleus each, ठीक है, टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस में क्या है, 4 6 member रिंग फ्यूज टुगेदर। ओके, सो 4 linearly fused tetracyclic nucleus, each ring should be 6 membered and purely carbocyclic। मतलब क्या कि ये जो चार रिंग्स है, ये रिंग 6 membered ही होना चाहिए और इसमें सिर्फ कोई हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दीज रिंग शुड बी प्योरली 6 membered एंड कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसमें सी एच ही होना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर नाइट्रोजन होगा तो पिरिडीन इमिडाजोल ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हेटेरोसाइक्लिक रिंग शुड नॉट बी देयर। सो फोर linearly fused tetracyclic nucleus, the rings should be membered and carbocyclic. A ring needs to be aromatic। आप देखो यहाँ पे ए रिंग जो है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सो इट इज नॉट एरोमेटिक। बी रिंग में भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, एक ही है, तो दैट इज नॉट मच एरोमेटिक। सी में भी नहीं है, लेकिन डी में क्या है, इट इज जस्ट एरोमेटिक रिंग, 3 डबल बॉन्ड्स है। सो रिंग डी नीड्स टू बी एरोमेटिक। जो रिंग डी है दैट नीड्स टू बी एरोमेटिक। रिंग ए शुड हैव appropriate substitution on the different carbon atoms। ये जो रिंग है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए, कहाँ पे, कार्बन नंबर 4 पे क्या चाहिए, डाइमिथाइल अमोनियम, डाइमिथाइल अमाइन। उसके बाद में कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल चाहिए, कार्बन नंबर 2 पे क्या चाहिए, कार्बोक्सिमाइड ग्रुप चाहिए। ठीक है, कार्बोक्सिमाइड। रिंग डी शुड हैव aromatic structure, aromatic ring, D should be aromatic and ring A should have appropriate substitution on the carbons। now ring B जो है and ring C जो है, ring B and ring C जो हमने देखा है, that can tolerate few changes as long as keto-enol system remains intact। मतलब रिंग बी और रिंग सी जो है, ठीक है, रिंग बी और सी, ये और ये दोनों रिंग, these two ring can tolerate substitution but up to some extent। कब तक, ये जो कीटोइनॉल सिस्टम है, देखो कीटोइनॉल मतलब क्या है, ये कीटोन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कीटोइनॉल। ठीक है, ये कीटोइनॉल सिस्टम जब तक साबुत रहेगा, जब तक उसको अफेक्ट नहीं होगा तब तक इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर ये अफेक्ट हो गया तो टेट्रासाइक्लिन का एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू कैन मॉडिफाई ओवर हियर ओनली R2 R3 हो चुका है। रिंग डी शुड बी एरोमेटिक, रिंग ए शुड हैव प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट एंड linearly four fused ring should be cyclo 6 membered and carbocyclic, उसमें heterocyclic ring नहीं होना चाहिए। now next is a ring B, ring B and C, ये दो जो बीच में करेंगे, that can tolerate a substitution up to a certain level, that substitution should not disturb the ketoenol system of your tetracycline। ये जो कीटोन प्लस हाइड्रोजन ग्रुप है दैट इज नोन एज कीटोइनॉल। क्या होता है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सचेंज होता है इनमें, तो कीटोइनॉल सिस्टम जो बनता है उसका, वो सिस्टम वो इंटैक्ट होना चाहिए, तब तक आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3, तो इसमें एक ही चीज याद रखो, इसमें बहुत सारे बार यही चीज आएगा कि कीटोइनॉल और कीटोइनॉल सिस्टम जो है वो इंटैक्ट आना चाहिए। देन रिंग ए कंटेन्स tricarbonyl ring A consists of a tricarbonyl derived ketoenol cysteine which is important for activity, important for
रिंग ए जो है, रिंग ए will have a ketoenol system. Ring A has it has a tricarbonyl derived ketoenol system, which is a optimum for your activity. टेट्रासाइक्लिन का जो एक्टिविटी है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है. उसमें कोई चेंज करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन विल लॉस द एक्टिविटी. ये जो है कीटोइनॉल सिस्टम, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है, ये जो कीटोन ग्रुप है दो, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो दिस कीटोइनॉल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रिंग ए. Any disturbance in this ketoenol system will lose the activity. So it is the optimum for the activity. Next one is a there are certain modifications. कार्बन नंबर पे, हर एक कार्बन नंबर पे मॉडिफिकेशन होता है. तो कीटोइनॉल tautomerism of the ring A at C1 and C3 is optimum for biological activity. उसमें कोई चेंज नहीं करना है. So any change in the ketoenol system will lose the activity. So equilibrium between non-ionizing Zwitteronic structure is important for activity. इसमें जो नॉन आयोनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है रिंग, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग स्ट्रक्चर और जो है रायन, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी है NH+ और यहाँ पे नेगेटिव भी है, ठीक है, इसलिए सो दैट इज द ज्विटर आयन. Ketoenol system is very much important and you should not disturb this ketoenol system. Nothing much can be modified at C1 and C3. Now modification of C2. Oxamide जो moiety है that is essential for activity. जो C=ONH जो ग्रुप है that is essential for activity. Mono substitution can be done by alkyl amino ethyl amide. मनीच बेसिस उसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रोली टेट्रासाइक्लिन. अभी ये जो कार्बन नंबर है आपका, कार्बन नंबर कौन सा, कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 है, इसके ऊपर जो C=O NH ग्रुप है, इसमें मॉडिफाई क्या होता है कि इसमें यहाँ पे NH2 के सामने कुछ लगा देंगे आप. सो दैट शुड बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी. मतलब दिस इज द साइट फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रो ड्रग्स, प्रो टेट्रासाइक्लिन्स. ये जो कार्बन नंबर 2 है दैट इज द साइट फॉर डिजाइनिंग द प्रो टेट्रासाइक्लिन्स. सो इफ यू add any substitution over here, amino group, so that will give you pro drugs. इसके ऊपर कोई एडिशनल सब्स्टिट्यूशन डाला आपने, कोई एसिड एस्टरिफिकेशन किया या फिर कोई हेटेरोसाइक्लिन डाला, so that will give you pro drug. And the activity of tetracycline is dependent on this basic structure only. So that pro drug must be broken down inside the body. अगर आपने यहाँ पे कोई भी चेंज किया तो वो बाद में जाके वो टूटने ही वाला है, तभी जाके आपको अगर नहीं टूटा तो एक्टिविटी नहीं मिलेगा आपको. सो कार्बन नंबर 2 इज द साइट फॉर the pro drugs. So example in case of Rolly tetracycline, large alkyl group of carboxamide large alkyl group on carboxamide interface with the normal ketoenol system of tetracycline. And okay, Rolly tetracycline is nothing but the pro drug. उसका pro drug है वो tetracycline का. So Rolly tetracycline अंदर बॉडी में जाके ब्रेकडाउन होता है उस पोजीशन पे, और उसको जो हेटेरोसाइक्लिन लगा है वो टूट जाएगा, तभी जाके एक्टिविटी दिखाएगा. Okay, next one is a modification of your carbon number 4. Ketoenol character of ring is due to ring A is due to 4-dimethyl amino substituent. So ketoenol character is due to 4A is due to 4-dimethyl amino substituent. जो ऊपर वाला जो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप है उसकी वजह से भी है इंपॉर्टेंट. It is replaced by hydrazone oxime. If it is replaced by hydrazone oxime or OH group, result in the loss of activity. ठीक है, तो आपका है यहाँ पे 4 नंबर कार्बन है, ये जो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप है इसको अगर ऑक्साइम करेंगे या फिर इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, so that will lose the activity. Modification of C4 position, C4A position. अब बोलेंगे सर C4A कहाँ पे है, तो ये जो कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे दो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप है, तो ये इसको बोलेंगे नॉर्मल कार्बन. C4A मतलब क्या है, C4 मतलब A मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलेंगे C4A. या हाइड्रोजन का अगर कुछ मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा वो देखते चलो. At C4 is important for activity. You cannot change that hydrogen. हाइड्रोजन को अगर आप उसने हाइड्रोजन की बजाय एसिटिल ग्रुप डाल दिया, दूसरा कुछ डाल दिया, that will lose the activity. Modification of your carbon number 5 and 5A position. Alkylation of 5 hydroxyl group result in the inactive compound
Naturally occurring tetracyclines will have unsubstituted methylene moiety at C5. नंबर 4 ये जो है यहाँ पे, ओके, अब नंबर 5 जो है ये, ठीक है, इसके ऊपर नेचुरली ऑकरिंग जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं उसमें कुछ नहीं होता इसके ऊपर। C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्ट इन द ऑफ C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नॉर्मली यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओके, सो अगर उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर रिमूव करके दूसरा कुछ ऐड करेंगे तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जैसे क्लोरोटेट्रासाइक्लिन होता है उसमें क्लोरीन ग्रुप का ऐड हुआ है। Alkylation of C5 hydroxyl group is inactive compound. Naturally occurring tetracyclines will have unsubstituted methylene moiety at C5. Oxytetracycline contains C5 hydroxyl group, C5 hydroxyl group, which is very important. Oxytetracycline जो है वो tetracycline का मेटाबोलाइट है। Tetracycline is a metabolite of tetracycline. Okay, याद रखो. Now small alkyl esters gives product which should be liberate free tetracycline in vivo. ester बनाएंगे उसका C5 के ऊपर तो प्रोड्रग ही बनेगा। अगर उसका एक्टिविटी चाहिए तो बॉडी के अंदर वो टूटना चाहिए जो भी है। सो इपिमराइजेशन आल्सो रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन। इपिमराइजेशन विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? टॉलरेट वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन विल हैव मिथाइल ग्रुप एट अल्फा एंड बीटा, methyl group at alpha and beta hydroxyl group at this position. Cycline is naturally occurring C6-demethylated chlorotetracycline with excellent activity. Removal of 6 hydroxyl group gives doxycycline with good antibacterial activity. Naturally occurring जो tetracycline होते हैं उसमें अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, अल्फा पे ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा, बीटा पे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। डीमोसाइक्लिन में क्या है कि डी मिथाइलेशन, डीमोसाइक्लिन में मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप नहीं। ये जो है 6 नंबर कार्बन एटम, ये जो यहाँ पे देखो ये 6 नंबर का कार्बन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो इसमें क्या एक अल्फा ओरिएंटेशन रहेगा। अल्फा ओरिएंटेशन जो जिसका होता है वो मैक्सिमम उसका मिथाइल ग्रुप होता है अल्फा ओरिएंटेशन में, और बीटा ओरिएंटेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। मतलब CH3 आ रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ दिस CH3 रिजल्ट गिव्स यू ए डीमोसाइक्लिन। डीमोसाइक्लिन, डी मतलब नहीं, मी मतलब मिथाइल, सो डीमो मतलब डी मिथाइल, ओके, डीमिथाइलेशन करना है। सो डी मिथाइल मतलब डीमोसाइक्लिन इज आल्सो एक्टिव, है ना। Tetracycline is naturally occurring C6-demethylated tetracycline. Chlorotetracycline with excellent activity. Removal of 6 hydroxyl group gives doxycycline. अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे नहीं निकाल दिया, मतलब मिथाइल भी निकाल दिया, हाइड्रोक्सिल भी निकाल दिया, ये दोनों भी R2 R3 निकाल दिया तो वो आपको देगा डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, ये दो ग्रुप में रहेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन इज आल्सो एक्टिव एंड इट इज गुड एंटीबैक्टीरियल एजेंट। at C6 C9 position. So aromatic जो D है, रिंग डी aromaticity is favorable to electrophilic substitution, and electron withdrawing group like nitro group or chlorine are introduced in some cases. C7 tetracycline, the most potent tetracycline but potentially carcinogenic, ठीक है। C6 C9 जो है, ये जो C6 C9 जो है ये, इसके ऊपर ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ये जो रिंग डी है, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स। सो इलेक्ट्रॉन withdrawing groups can be attached, nitro group or that, okay. So they have made some tetracyclines but they are carcinogenic, so nothing much can be done over here. Modification of ये हो गया। Then modification of C10 position. So phenolic moiety is important. Phenolic moiety is important. C11 carbonyl is important for activity. Modification of C11A does not give stable tetracyclines. Add carbon number 12 hydroxyl group esterification gives product and which must undergo again catalysis in the body to give active tetracyclines. उतना ये सार भी कुछ important नहीं है। Now examples of drug. Natural tetracycline में आता है आपका, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका तो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स, सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स एंड देन प्रो टेट्रासाइक्लिन्स। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स: नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन एंड प्रो टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। नेचुरल टेट्रासाइक्लिन में आता है आपका, जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन, जैसे नेचुरल में आता है आपका टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एक मिनट, टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टेट्रासाइक्लिन में क्या है कि ये बेसिक तो बाकी कॉमन है, जो रिंग डी है उसके ऊपर जो ये रिंग डी के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ऊपर यहाँ पे जो आर वन रहता है वहाँ पे आर वन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और यहाँ पे R2 R3 जो है वो मिथाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, सो नेचुरली ऑकरिंग टेट्रासाइक्लिन ऐसा है। उसके बाद में क्लोर टेट्रासाइक्लिन में क्या है कि रिंग डी जो है उसके ऊपर, रिंग डी के ऊपर क्लोरीन डाल दिया उन्होंने, सो क्लोर टेट्रासाइक्लिन। सो इसमें और टेट्रासाइक्लिन और क्लोर टेट्रासाइक्लिन में एक ही डिफरेंस है, सिर्फ इतना क्लोरीन का। सो क्लोरीन एटम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड दिस वाज द फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन टू बी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन टू बी आइडेंटिफाइड वाज क्लोर टेट्रासाइक्लिन। अभी ये क्लोरीन को अगर रिप्लेस कर देंगे आप ब्रोमीन से तो बन जाएगा ब्रोमो टेट्रासाइक्लिन। इफ यू रिप्लेस दिस क्लोरीन एटम बाय ब्रोमीन, so you will get a bromo tetracycline. Okay, that's it. And next one is oxytetracycline. Oxytetracycline, तो उसमें oxytetracycline में क्या डिफरेंस है, oxytetracycline और आपका नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन में क्या डिफरेंस है, देयर इज जस्ट वन डिफरेंस, दिस OH ग्रुप। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो OH ग्रुप है that is additional in case of oxytetracycline, so that's why this oxytetracycline is a metabolite of your natural tetracycline। यहाँ पे देखो ये इस कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ओके, आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है आपका, जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन अगर होगा टेट्रासाइक्लिन का तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा वो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। so you can call oxytetracycline as a prodrug of your natural tetracyclines। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और नेक्स्ट वन इज डेक्समिथाइल टेट्रासाइक्लिन। डेक्समिथाइल टेट्रासाइक्लिन, डेक्समिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डेक्समिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, डेक्समिथाइल टेट्रासाइक्लिन एंड डेक्समिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो कार्बन नंबर 7 के ऊपर जो R2 R3 था वो दोनों गायब है यहाँ से। ठीक है, सो डेक्समिथा, डेक्समिथा मतलब डीमिथाइलेशन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मिथाइल ग्रुप से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे गायब हो चुका है। ये जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं। सो डेक्स मिथाइल टेट्रासाइक्लिन, और उसमें अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो बोलेंगे डेक्स मिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो डेक्स मिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा आपको यहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं। और नेक्स्ट विल सी second class is semi-synthetic tetracyclines। semi-synthetic tetracyclines, semi-synthetic में आता है आपका मीथासाइक्लिन। फर्स्ट वन इज मीथासाइक्लिन, फर्स्ट वन इज मीथासाइक्लिन। सो मीथासाइक्लिन मतलब क्या, मीथासाइक्लिन। ओके, सो इन केस ऑफ मीथासाइक्लिन देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो रिमूव हो चुका है, और वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव किया है, सो डबल बॉन्ड O, सो डाइकीटोन आ जाएगा। ओके, सो रिंग सी पे जो है डाइकीटोन आएगा मीथासाइक्लिन में। नेक्स्ट इज डॉक्सीसाइक्लिन। सो डॉक्सीसाइक्लिन में क्या है एडिशनल, वो जो डॉक्सीसाइक्लिन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव किया है यहाँ से, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन में आ जाएगा, उसको बोलेंगे डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट मिलता है आजकल कोरोना के लिए। कोरोना वायरस के इसमें बहुत यूज हुआ है डॉक्सीसाइक्लिन का। ठीक है, वाइड यूज हो चुका है डॉक्सीसाइक्लिन का। सो ऑल द कोरोना ससेप्टेबल पेशेंट्स और कोरोना सिम्टम्स जिसमें है उसमें सब डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट देते हैं। डॉक्सी 1 LR 100 7 डेज के लिए। तो जिसको भी कोरोना हो चुका है डॉक्सीसाइक्लिन लेने का 7 दिन तक, या फिर 4-5 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन लेने का, तो क्लियर हो जाता है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग है लेकिन एंटीवायरल वायरस को भी किल कर देगा। नेक्स्ट वन इज मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन में क्या है एडिशनल, बस यहाँ पे जो डाइमिथाइल ग्रुप है अगेन वो यहाँ पे भी डाइमिथाइल ग्रुप डाल दिया, दैट इज मिनोसाइक्लिन, बाकी कुछ नहीं। थर्ड क्लास इज नथिंग बट द प्रोटेट्रासाइक्लिन्स। इट इज नथिंग बट द प्रोटेट्रासाइक्लिन। प्रो मतलब क्या, प्रो ड्रग्स, एंड ऑल द प्रोटेट्रासाइक्लिन्स आर नथिंग बट द प्रो ड्रग्स। जितने भी प्रोटेट्रासाइक्लिन्स है वो सब प्रो ड्रग है। ठीक है, बाद में उनका एक्टिव कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है,
नाउ रोली टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। फर्स्ट ड्रग इज रोली टेट्रासाइक्लिन। सो रोली टेट्रासाइक्लिन ये जो है रोली टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे देखो टेट्रा टेट्राहाइड्रो टेट्राहाइड्रोथाइज क्या टेट्राहाइड्रोपायरॉल यहाँ पे डाला है, टेट्राहाइड्रोपायरॉल यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रिंग डाला है कार्बन नंबर 2 जो कार्बोक्सिमाइड ग्रुप है उसका, उसको यहाँ पे अटैच किया है ये, ठीक है। तो इनसाइड द बॉडी ये ब्रेक होना मांगता है, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना मांगता है यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, ये ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि ऐसे रहेगा, यहाँ पे NH की जगह NH2 बन जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। सो दैट विल बी एक्टिव। सो रोली टेट्रासाइक्लिन itself is not active, so it should liberate active tetracycline moiety in the body, so it is a prodrug. साइक्लिन डाइमेसाइक्लिन जो है देखो इसमें ये एडिशनल है, ये जो येलो वाला पार्ट है वो एडिशनल पार्ट है। तो इनसाइड द बॉडी ये जाके ब्रेक होता है, NHCH2 बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, ये अमीनो एसिड। सो दैट इज अ लाइमेसाइक्लिन। लाइसिन अमीनो एसिड है उसमें, ठीक है। लाइसिन जो है एसिड है उसमें, प्रोड्रग है। और नेक्स्ट वन जो भी है, नेक्स्ट जितने भी प्रो टेट्रासाइक्लिन है वो सब प्रोड्रग है। क्लोमोसाइक्लिन 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 मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है, मिथा मिथा मिथेनॉल है यहाँ पे, CH2OH यहाँ पे सिर्फ एडिशनल CH2OH है कार्बोक्सिमाइड का यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट वन इज एपीसाइक्लिन एपीसाइक्लिन एंड पिपासाइक्लिन पिपासाइक्लिन। इसमें क्या है, इसमें पिप्राजिन ग्रुप डाला है, पिप्राजिन, ओके। एक पिप्राजिन डाला है इनने, NH ये देखो C डबल बॉन्ड NH CH2 COH देन N ये पिप्राजिन और ये बाकी पिप्राजिन डाला है तो एपीसाइक्लिन। और पिपासाइक्लिन में क्या है कि नो COH ग्रुप, ये जो हाइड्रोकार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव होता है, तो उसको ये पिपासाइक्लिन। ये स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अपने पास टाइम है इसलिए अपन ले रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज गोमेसाइक्लिन गोमेसाइक्लिन गोमेसाइक्लिन। तो इसमें भी इसका स्टरीफिकेशन क्या है कार्बोक्सिमाइड ग्रुप का, ये सारा एडिशनल डाला है, ये भी आपका प्रोड्रग है। दैट विल एंड योर चैप्टर।